Welcome to the Muluka Academy. Myself Anil Kumar Skija, and today I will take class 9th and topic is triangles. So we start with topic triangles. Class 9th. So we have started this chapter and we have delivered 2 lectures on it. In first lecture we did the various types of creations. Then we have seen the questions based on SAS and ASA rule, and today we will move further. We will do some more questions based upon SSS and RHS. So basically today's topic is on SSS, that is side, 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 and RHS, right angle, right angle, hypotenuse, and side, and plus the previous 2 creations, that is SAS and ASA. So in this we have got this question. Likewise we are given this figure. This figure is AB, CD, we join to this, we join to this. This angle is equal to this angle, that is angle 1 is equal to angle 2, and this angle 3 is equal to 4. Angle 3 is equal to angle 4. And what we need to prove in this, and this point is P here, what we are to prove, that to prove this is given to us and we are to prove AC is equal to BD, and secondly ACD, angle A is equal to angle B. So these 2 things we have to prove. So this is very much easy, as we can see from the figure itself, that is angle 1 is equal to angle 2, 3 is equal to angle 4. So first we will consider this angle, this one APC and BPC, BPD. So in these triangles what we can see, that angle 3 is equal to angle 4, then we have secondly angle P is equal to angle P. एंगल P के इक्वल होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये गिवन है. और थर्ड हमें क्या है इसमें 1, 2, एंड दिस विल बी योर, दिस साइड इज इक्वल. सो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. थर्ड एंगल क्या होगा? सो वी कैन हैव angle A is equal to angle B by angle sum property. So this is what we want to find. First thing we have proved this. Now we have to prove AC is equal to BD. So for that what we do in triangles, we take ACD and triangle BDC. So in these 2 triangles we have, since we know that 1 and 2 are equal, angle 3 is equal to angle 4, and if we add them, what you get? 1 plus angle 3, angle 2 plus angle
4. And what is 1 plus angle 3? This is ACD equal to angle BDC. So, and A is equal to angle B, we already got from 1, this is from 1, these two are given, and thirdly, what we have got, CD is equal to CD, this is common. So, अब मैंने ये क्या किया है, जस्ट लुक हेयर, एक तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये हमने पहले से प्रूव कर रखा है फ्रॉम फर्स्ट, एक ये वाला सारा एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया, एक डी सी डी इज इक्वल टू सी डी. तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा रूल लगा इसमें, ए ए एस, दिस इज ए ए एस. तो ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल बी डी सी के, बाय ए ए एस रूल. तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्रायंगल्स तो क्या हो सकता है फिर, ए सी इज इक्वल टू बी डी. सो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय किस रूल से हो गया ये, सीपीसीटी. सो वी कैन से दैट बाय सीपीसीटी दीज टू sides are equal. Then second question is, this is first question, then second question in this is, ABCD is a quadrilateral, एक ABCD यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, और जिसमें क्या दिया हमें, AB AD के इक्वल है, ये गिवन है, और BC CD के इक्वल है. तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमने फर्स्ट तो प्रूव करना है इसमें AC बाइसेक्ट्स एंगल, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C. सेकंड हमने क्या प्रूव करना है इसमें, AB BE इज इक्वल टू, दिस इज E, BE इज इक्वल टू ED. और थर्ड हमने क्या प्रूव करना है, ABC ADC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल ADC. सो वेरी मच इजी, वी कैन मेक आउट फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ. So first of all we want to prove that these two angles are equal. We want to prove this. Then we want to prove A and C angle is bisected by line AC. So this can only be proved if we can prove these two triangles as congruent. So we look proof here in triangles ABC and triangle ADC. What we have got, AB is equal to AD, then BC is equal to CD, and third, what is there, AC is equal to AC. So how we can show this, these two are given and this is common. Now we see that the three sides of one triangle are equal to three sides of other triangle. So this is by SSS creation we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADC by SSS rule. Now what we have shown that these two are equal. If we now we mark these angles as, now what we want to show that, let us mark these angles as 1 and 2, this is 3 and 4, and we can clearly write from here that angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. Why? By CP, CT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. So that is why angle 1 will be equal to angle 2, angle 3 will be equal to angle 4. Now we can say from this figure that AC bisects both angle A and C.
So AC bisects angle A and angle C. So these two angles are bisected. So this we have proved. First part is proved. Then second is third we will prove first ABC is equal to ADC. So this is your ABC, this is your ADC. So we can say that ABC is equal to ADC again by CPCT. So these two are also equal. So third is also proved. Now we are left with BE and ED. So for that what we will do? So we will do it here in triangle. कौन से ट्रायंगल है? ABE and triangle ADE. So अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं तो क्या पता चलता है हमें? लेट अस सी. एक तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, ये हमने प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड. ऊपर फ्रॉम 1 कह सकते हैं हम. एक क्या है? AE इज इक्वल टू AE. ये क्यों है? कॉमन टू बोथ साइड्स, कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स. एंड AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD ये गिवन है हमें. तो अब क्या हो गया? दो साइड्स होंगी, एक ट्रायंगल हो गया. तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS रूल. तो ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाले दोनों, तो क्या हो जाएगा? अब हम लिख सकते हैं यहां से BE और ED सेम होंगे. वी कैन से दैट BE और ED इक्वल होंगे बाय CPCT. So we can clearly mention these things. We can look at this, that these are very much observable. We observe that these things these can be proved. Okay. So then we move to the next part. So here we have done SSS, then SAS. We have also covered SAS here, SAS rule. So remaining 3 rules are covered today, which we are left with. So okay, we move to the next part. Then we move on to the next part. What is there in the next question? AB is a line segment, PQ are the points on the opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A and B. So question third is, AB is a line segment, P and Q are the points which are equidistant. P is equidistant from A and B, so these two are equal. Then Q is equidistant from A and B, which is equal. So what we need to show that PQ is perpendicular bisector of AB. So if we join PQ, तो हमने क्या प्रूव करना है? To prove PQ is perpendicular bisector of AB. So
सो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमने शो करना चाहते हैं इसमें। तो अगर हम देखते हैं, दिस इज वेरी मच क्लियर। अगर हमने पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। एक तो इसमें हम मार्क करते हैं सी, एक तो हम प्रूव करेंगे सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेकेंडली ए सी इज इक्वल टू बी सी। सो इसका मतलब हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमें दिख ही रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये तो दो गिवन ही है हमें। सो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, इसमें क्या है, पी ए और पी बी इक्वल है। सेकेंडली ए क्यू और बी क्यू इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। और थर्डली पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ये कैसे आया? क्योंकि ये कॉमन है। सो अब हमें क्या हो गया, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू बाय एस रूल। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडों को इक्वल कर दिया, एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल। तो उससे क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मेंशन करते हैं, ये वाला एंगल हमारा 1 ले ले, ये 2 ले ले, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। अब ट्रायंगल को छोटा कर देते हैं, दैट इज पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, पी बी सी। तो इसमें क्या हो गया, एक तो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, ये तो प्रूव हो चुका है हमारा। सेकेंडली क्या आएगा, ए पी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये भी गिवन है। और थर्ड हमारा क्या आएगा, एक ये हो गया पी सी इज इक्वल टू पी सी। सो इससे क्या हो जाएगा फिर हमारा, वी कैन से दैट ट्रायंगल पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। और अगर इनको मैं मेंशन कर दूं 3 और 4, एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे, ये भी बाय सी पी सी टी है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब ये इक्वल हो गए, तो हमने क्या प्रूव करना है, इनको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब हमें ये भी पता है 3 और 4 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 4 is equal to 180 degree. So clearly from these two we can write angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 degree. So ये तभी पॉसिबल है अगर 3 और 4 एंगल दोनों ही 90 के हों। So it means ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। तो इससे हमारा ये चीज प्रूव हो गया, PQ is perpendicular bisector of ए बी। सो यही हम प्रूव करना चाहते थे, ये प्रूव हो गया। देन नेक्स्ट इज ए बी सी एंड पी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी वर्सेस ए एंड पी ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी ए पी आर ज्वाइंट। सो हमारे पास क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है हमें। एक तो ए बी सी दिया है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल होंगे, और एक दिया है हमें पी बी सी, ये भी हमारा इक्वल है, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करते हैं, ए पी को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने प्रूव क्या करना है, जो गिवन है वो तो सामने फिगर में शो हो रहा है, दैट इज साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी और पी बी इज इक्वल टू पी सी, और हमें
क्या प्रूव क्या करना है, प्रूव इसमें क्या करना है, पहले तो यही प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए पी सी, और एक उसका एंगल शो करना होगा, यही है इसमें ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। सो इसको हम सीधे प्रूव करते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ये वाले ए पी बी, ये हो गए ए पी बी और ए पी सी, तो इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये हमारी कॉमन होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर इटसेल्फ इट इज क्लियर। क्या क्लियर है यहां से, वी कैन हैव ए बी ए सी के इक्वल हो गया, इसमें हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। ए बी ए सी के इक्वल है, पी बी पी सी के इक्वल है, और थर्ड ए पी इज इक्वल टू ए पी। सो ये तो हमें गिवन ही है, ये कॉमन है। तो अब क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट किसके बराबर हो गया, ये ए पी सी के हो गया, ट्रायंगल ए पी सी बाय अगेन बाय एस 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 रूल। तो अब ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा। सेकंड हमने क्या करना है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो अब हम अगर इन दोनों पार्ट्स को 1 और 2 लिख लेते हैं, एंगल 1 भी इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये इक्वल है तो क्या कर रहा है, ए पी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। सो हेंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। So then we move to the next part, but before that we have to rub this part. Then next question is, P is a point equidistant from the lines L and M intersecting at point A. So इसमें क्वेश्चन ये फिफ्थ है, L और M दो लाइंस हैं जो कि ये L है, ये M है, A पे इंटरसेक्ट कर रही है और P यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये इन दोनों, ये लाइन P पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस है, दैट इज यहाँ पे अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें तो ये हमारा सेम आएगा। वी आर गिवन दिस इक्वल, सो वी ज्वाइन AP। तो इसमें हमने क्या शो करना है, वी वांट टू शो दैट AC bisects the angle between L and M. AP to prove AP
bisects angle A, that is angle between L and M. L और M लाइन में जो भी एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी वही करना है हमने। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, इसको हम ले लेते हैं C और ये ले लेते हैं D। ओके, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल APD, तो इसमें क्या है, एक तो AP इज इक्वल टू AP हो जाएगा, ये तो होगी हाइपोटेन्यूज, और सेकेंडली क्या है, AP इज इक्वल टू AP कैसे हो गया, एक तो ये कॉमन है और हाइपोटेन्यूज भी है। AP तो सेम होगी, देन PC इज इक्वल टू PD, ये गिवन है हमें, क्या गिवन है, ये P पॉइंट जो है दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस है। जब अगर हमने इक्वी डिस्टेंस कहा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइनों से सेम होगा। तो अब ये भी हम कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये भी हमें गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। सो ये अब हमारे पास क्या हो गया, एक तो हो गया राइट एंगल, एक होगी हाइपोटेन्यूज, एक होगी साइड। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APD। कौन से रूल से, बाय RHS रूल। राइट एंगल ये रहा, ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज और ये साइड होगी। सो तीनों चीजें हमारी सेम होगी, एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज होगी, एक साइड होगी, सब ये इक्वल हो गया। तो इसमें अगर इन एंगल्स को हम 1 और 2 लिखते हैं, सो 1 इज इक्वल टू 2 होगा बाय CPCT। तो हमारा प्रूफ हो गया, क्या कहना चाहते थे हम, AP बाइसेक्ट्स, दैट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज एंगल बिटवीन L एंड M, और L और M में जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहा है हमारा, यही हमने शो करना था। देन 6th क्वेश्चन है, AD, BE and CF are the altitudes on triangle, sides of the triangle ABC are equal, prove that ABC is an equilateral triangle। सो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, इस पे अल्टीट्यूड्स है AD, BE और CF। हमें क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, altitudes are equal, गिवन है ये। तो प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो आल्टीट्यूड्स है ये हमारे 90 डिग्री होंगे एंगल्स। ओके, सो पहले हम कौन सा लेते हैं ट्रायंगल, सो फर्स्ट इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC, BEC, BFC, CEB, कॉरस्पॉन्डेंस वही चाहिए ना, तभी होगा हमारा। तो इसमें एक तो हमारा क्या हो गया, F और E, ये वाला लिया हमने, एक तो ये ट्रायंगल लिया है और एक ये वाला लिया है। इसमें क्या है, F और E किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। सेकेंडली
बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन है हमारा, ये गिवन है हमें, आल्टीट्यूड है और इक्वल है। और थर्ड हमारा क्या है, साइड कौन सी इक्वल होगी, बीई और सी एफ, बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये भी गिवन है हमें। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी बाय अगेन बाय आर एच एस रूल। एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूस होगी और एक साइड होगी। हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी, बी सी कॉमन है, एक राइट एंगल हो गया, ई और एफ सेम है, और हमारी साइड कौन सी होगी, जो हमारे आल्टीट्यूड्स है वो इक्वल लेंथ के हैं। ओके, सो अगर हमारे पास ये आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी और सी इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। अगर बी और सी इक्वल है, उनके सामने वाली साइड्स, दैट इज ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो इसके लिए एक हमारे पास थ्योरम है, दैट इज साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो वी कैन राइट इट, ए सी इज द साइड इक्वल टू दिस बी एंगल एंड ए सी ए बी इज द साइड इक्वल टू सी एंगल, दैट इज साइड्स equal to equal angles are also equal in a triangle। एक ट्रायंगल में क्या होता है, जो साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल टू सामने होती, ऑपोजिट, नॉट इक्वल टू, दिस इज ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब यही हम काम किस में करते हैं, ट्रायंगल से बदल लेते हैं। एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा ए डी सी, सेकेंड सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, एक तो ए डी सी हो गया और दूसरा हमारा हो जाएगा ये वाला ए एफ सी। ए एफ सी, सो यहाँ पे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए विल बी टू एंगल सी। उसी तरह से पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी बाय आर एच एस, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक राइट एंगल है, ओके, और एक ए सी सेम है, और हमारे पास ये हो जाएंगी ए डी और सी एफ इक्वल होंगे। सो सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस दीज आर इक्वल। सो अब क्या होगा, इसमें हमारे पास ए और सी इक्वल है, ए के सामने क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी के सामने ए बी। सो ये हमारी साइड्स, इसको हम ले लेते हैं 3, ये 4। सो फ्रॉम 3 and 4 वी हैव, तो क्या कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो अब हमारा प्रूव हो गया, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूव हो गया, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होंगी। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। So thanks for listening the lecture. Thank you very much.